My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another practice session on quantitative aptitude. So if you're not already subscribed to the channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel, Mathological, and download the PDF from there and practice it in the timed manner, or you can directly watch the solutions. Start karte hain. First question, Ram purchased a flat at rupees 1 lakh and Prem purchased a plot of land worth rupees 1.1 lakh. The respective annual rates at which the prices of the flat and plot increased were 10% and 5%. After 2 years, they exchanged their belongings and one paid the other the difference. तो किसने किसको कितना पे किया होगा? That is what the question is. There are two persons, Ram and the other person is Prem. So Ram purchased a flat at rupees 1 lakhs and Prem purchased a plot of land worth rupees 1.1 lakh. The respective annual rates at which the prices of the flat and plot are increasing are 10% and 5%. Okay. And after 2 years question पूछ रहा है. Question is saying after 2 years they exchanged their belongings. तो 2 years के बाद में प्राइस क्या होगा पहले ये पता लगाते हैं. So 10% is successive change. 1 year का चेंज है क्या 10%. नेक्स्ट ईयर अगेन 10% चेंज होगा. तो नेट चेंज क्या आ जाएगा? नेट चेंज विल बी 10% प्लस 10% a प्लस b प्लस ab by 100 यानी 10 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 by 100 और बेसिकली 10% का successive change 2 years का that will be called 21%. So 21% will be the increase in the price. So plus 21% of 1 lakh. 1% is 1000, 21% will be 21,000. So total price will be 1,21,000 for the flat of Ram. Okay. Similarly for Prem, 5% का increase है तो 5% plus 5% plus 5 into 5 by 100. This will become equal to effectively 10.25%. Okay. So 10% of 1,10,000 will be 11,000. 1% will be 1100 और 0.25% क्या होगा? 10% will be 11,000. 1% will be 1100. 0.25% will be 1100 divided by 4. So that will be 275. So 11,275. So total price will be now 1,21,275 rupees for the plot of land of Prem. Now they are exchanging their belongings. तो राम के फ्लैट का प्राइस 1,21,000 और प्रेम के प्लॉट का प्राइस 1,21,275 रुपीज एक्स्ट्रा. 275 रुपीज एक्स्ट्रा हो रहा है. सो दैट अमाउंट मस्ट बी पेड बाई राम टू प्रेम बिकॉज राम अब ओन करेगा प्रेम का प्लॉट ऑफ लैंड. 275 एक्स्ट्रा है तो राम मस्ट बी पेइंग प्रेम 275 रुपीज. सो आंसर विल बी राम पेड रुपीज 275 टू प्रेम. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, क्लियर. Next question. In how many ways can 8 directors, vice chairman and chairman of a firm be seated at a round table if the chairman has to sit between the vice chairman and a director? There are total 8 directors, 1 VC and 1 chairman. 1 chairman. Now, chairman has to sit between a director and a vice chairman. ठीक है. So, vice chairman एक साइड में होगा, एक साइड में डायरेक्टर होगा. ऑफ कोर्स चेंज हो सकता है कि पहले डायरेक्टर हो फिर वाइस चेयरमैन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अल्टीमेटली कैसे अरेंज करोगे? क्योंकि चेयरमैन को हमें बिठाना है बिटवीन वाइस चेयरमैन एंड डायरेक्टर. तो वाइस चेयरमैन डायरेक्टर वगैरह पे एडिशनली तो कोई कंडीशन नहीं है. कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन पे. तो चेयरमैन को लास्ट में बिठाओ, पहले बाकी सबको अरेंज कर दो. सो वी कैन अरेंज 8 डायरेक्टर्स एंड 1 वाइस चेयरमैन अराउंड राउंड टेबल. क्योंकि राउंड टेबल है सर्कुलर परमुटेशन होगा. सो 9 पर्संस है तो n-1 फैक्टोरियल, n पर्संस के लिए n-1 फैक्टोरियल. तो फॉर 9 पर्संस दिस विल बी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट विल बी 8 फैक्टोरियल. 9-1 फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल विल बी अरेंजमेंट. अब हमने डायरेक्टर्स और वीसी को अरेंज कर दिया है. ठीक है. सो डेफिनेटली देयर इज ओनली 1 वीसी. सो समवेयर वीसी मस्ट बी सिटिंग और उसके दोनों साइड में होंगे डायरेक्टर्स. और अब हमें चेयरमैन को बिठाना है. तो चेयरमैन को बिठाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? दीज 2 प्लेसेस. या तो यहां बिठा सकते हैं चेयरमैन को या फिर यहां बिठा सकते हैं. ओनली 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल. सो बिटवीन दीज 2 वी हैव टू सेलेक्ट 1. ठीक है. सेलेक्ट 1 प्लेस आउट ऑफ द 2 ऑप्शंस गिवन इन दिस सिचुएशन. तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2c1. सो आंसर विल बी 2 इंटू 8 फैक्टोरियल. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. 2 इंटू 8 फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर? ओके.
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. For the product n into n plus 1 into 2n plus 1, where n is a natural number, which one of the following is not necessarily true? Not necessarily true, यानी कि rest of out of the 4 options, 3 options will be necessarily true, 1 option will not be always true. कुछ cases में true हो सकता है, but हमेशा true नहीं होगा, and that will be our answer. So n into n plus 1 into 2n plus 1, where n is a natural number. पहला option कह रहा है, option A is saying it is even. So is it even? n into n plus 1 into 2n plus 1. तो देखो या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, बट क्या ये इवन है? देखो इफ एन इज, दो केसेस लेते हैं, दो ही केसेस होंगे, या तो एन हमारा इवन होगा. इफ एन इज इवन देन डेफिनेटली एन तो इवन है ही है. अब इवन इनटू अगर बाकी दोनों ऑड भी होंगे, बिकॉज फिर एन प्लस वन ऑड हो जाएगा, 2n प्लस 1 भी ऑड हो जाएगा, बट इवन इंटू ऑड चाहे कितने भी ऑड क्यों ना मल्टीप्लाई करो, बट इवन तो इवन ही रहेगा. सो दैट इज वाई प्रोडक्ट विल डेफिनेटली बी इवन. इफ एन इज इवन तब तो पक्का से इवन है फॉर श्योर. सेकेंड केस लेते हैं, इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड होगा तो एन तो ऑड रहा, बट n प्लस 1 विल बी ऑड प्लस 1 यानी कि इवन हो जाएगा. सो n प्लस 1 इवन हो जाएगा और साथ में 2n प्लस 1 भी इवन हो जाएगा, डबल इवन हो गया है. तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो इवन. सो यस दिस इज इवन इन बोथ केसेस. सो दिस इज करेक्ट, इट इज इवन. एंड सिंस दिस इज करेक्ट तो आंसर तो नहीं होगा ये, बिकॉज आंसर वो होगा जो कि हमेशा करेक्ट नहीं हो. इट इज डिविजिबल बाई 3. सो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ऑप्शन ए को चेक कर लिया हमने. ऑप्शन बी की बात करते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1. अब क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो 3 केस हो सकते हैं, या तो n विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3 इटसेल्फ, ठीक है. सो फर्स्ट केस इज n इज इक्वल टू अ मल्टीपल ऑफ 3. सो इफ n इज अ मल्टीपल 3 तो n खुद ही 3 का मल्टीपल हो गया, तो उस केस में तो डेफिनेटली प्रोडक्ट इज मल्टीपल ऑफ 3 फॉर श्योर. फिर ये हो सकता है कि n कैन बी 3 का मल्टीपल प्लस 1, एंड इफ n इज 3 का मल्टीपल प्लस 1 तो n तो डिविजिबल नहीं होगा 3 से. n प्लस 1 3 के प्लस 1 होगा, यानी कि दिस विल बी 3 के प्लस 2. तो ये भी तो मल्टीपल नहीं हुआ 3 का, बट 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 3 के प्लस 1 यानी कि 6k प्लस 2 प्लस 1. सो बेसिकली दिस पार्ट इज 6k प्लस 3 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो प्रोडक्ट तो हमारा फिर भी मल्टीपल ऑफ 3 है. और थर्ड सिनारियो व्हेन n इज 3k प्लस 2, यानी 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, तो उस केस में n प्लस 1 विल बी डिविजिबल, बिकॉज दिस विल बी 3k प्लस 3 यानी कि मल्टीपल ऑफ 3. तो इस केस में भी दिस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3, यानी कि इन ऑल 3 केसेस, क्योंकि यही 3 केसेस पॉसिबल है, इन ऑल 3 केसेस डेफिनेटली फॉर श्योर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 विल बी डिविजिबल बाई 3. तो ये भी आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी, इट इज डिविजिबल बाई सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. सो इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सिग्मा n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और हमें यही वैल्यू तो गिवन है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यानी कि दिस इज बेसिकली सम. ये तो सम था हमारा n स्क्वायर का, सिग्मा n स्क्वायर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, इजंट इट सो? और उस सम का 6 टाइम्स वैल्यू हमें गिवन है, तो डेफिनेटली इट इज डिविजिबल बाई सम ऑफ द स्क्वायर्स. दिस इज ऑलवेज ट्रू. तो ये भी आंसर नहीं है, यानी कि आंसर डेफिनेटली ऑप्शन डी है फिर, कि इट इज नेवर डिविजिबल बाई 237, नॉट नेसेसरली ट्रू. ठीक है, नॉट नेसेसरली ट्रू. अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है नेवर डिविजिबल. ओके, सो विल इट बी ट्रू और नॉट? ट्रू ये तब होगा जबकि वाकई में फैक्चुअली n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इज नेवर डिविजिबल बाई 237. बट अगर हमारा n इक्वल टू 237 हो तो तभी डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज दिस विल बी 237 इंटू समथिंग, 237 का मल्टीपल होगा. n अगर 237 का मल्टीपल हो तो तब भी डिविजिबल हो जाएगा, 237 के तब भी डिविजिबल हो जाएगा. n अगर हमारा 236 हो तब n प्लस 1 इज 237, तो वहां पे भी डिविजिबल होगा. अगर n हमारा 118 हो इन दैट केस तो 2n प्लस 1 भी 237 तब भी डिविजिबल होगा. सो देयर आर सो मेनी केसेस. ठीक है, अब इसके बाद और केसेस निकाल सकते हो जहां पे कि हम ठीक है, और भी बहुत सारे केसेस निकल सकते हैं. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल n प्लस 1 237 का मल्टीपल हो जाए तो वो भी वहां पे भी पॉसिबल है. तो देयर आर सो मेनी अदर केसेस वेयर दिस विल बी ट्रू, बट हमेशा नहीं होगा. ठीक है, सो नॉट नेसेसरली ट्रू. इन सम केसेस डिविजिबल होगा, सम केसेस में डिविजिबल नहीं होगा. दैट इज व्हाई दिस विल बी द आंसर. ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx is equal to x cube minus 4x plus p and f0 and f1 are of opposite signs, then which of the following is not necessarily true? is necessarily true यानी कि हमेशा करेक्ट होगा. f0 and f1 are of opposite signs, which implies कि अगर हमारा f0 पॉजिटिव है तो
F1 नेगेटिव होगा, F1 पॉजिटिव है तो F0 नेगेटिव होगा। और ये ध्यान रखना कि इफ सम वैल्यू इज जीरो तो जीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। ओके, जीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। तो अगर हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है F0 का, यानी कि दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेगेटिव आ रहा है तो वो भी जीरो नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये दो केसेस बनेंगे। अब इनको हम एक साथ कैसे काउंट कर सकते हैं? देखो हमारा एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बट अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो F0 इंटू F1 दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, बिकॉज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट हमारा हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, और F0 की वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो। सो जीरो क्यूब माइनस 4 इंटू जीरो प्लस पी, तो इफेक्टिवली पी बच गया। और F1 विल बी इक्वल टू 1 क्यूब minus 4 into 1 plus p. So this will be p minus 3. F0 into F1 will be p into p minus 3, which is less than 0. तो critical points हमारे आ गए p equal to 0 and 3. So if p is greater than 3 तब तो पॉजिटिव आएगा, less than 0 तब भी पॉजिटिव आएगा, between 0 and 3 this will be negative. तो यही हमारे काम का सॉल्यूशन होगा कि p should be between 0 and 3 और 0 should be less than p and p should be less than 3. Option B will be the answer. Okay. This also implies one more thing कि F0 and F1 अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो ग्राफ हमारा F0 से F1 यानी 0 से 1 के बीच में हमारे ग्राफ ने डायरेक्शन चेंज किया होगा। तो बिटवीन 0 एंड 1 ग्राफ ने डायरेक्शन चेंज किया होगा। अगर 0 पे हमारा ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो अपवर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, अगर अबव द एक्स एक्सिस होगा तो डाउनवर्ड्स चला जाएगा। बेसिकली कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो अगर या तो ये केस होगा या सेकंड सिनेरियो होगा कि 0 पे पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों केसेस में देयर विल बी एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, अब यहां पे एक और बात समझने वाली है, एटलीस्ट वन रूट का है, बट इसका ये मतलब नहीं कि दो रूट भी हो सकते हैं, बिकॉज साइन चेंज हुआ है तो दो रूट तो नहीं होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली दो रूट तो नहीं होंगे। ओके, या तो एक रूट होगा या ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे, यानी कि एक होगा या फिर दो रूट्स होंगे, सॉरी या फिर तीन रूट्स होंगे। सो ईदर देयर विल बी एग्जैक्टली वन रूट, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है दैट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। सो ईदर वन रूट विल बी बिटवीन 0 एंड 1 और थ्री रूट्स विल बी बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये एडिशनल बात है, इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है, बट समझ में आना चाहिए कि या तो फिर अकेला एक रूट होगा या फिर देयर विल बी थ्री रूट्स बिटवीन 0 एंड 1। ओके, अब यहां पे एक और बात समझते हैं। देखो हमारा इक्वेशन है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस पी, और इन जनरल अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है दैट इज द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, इफ दैट इज द इक्वेशन। और इन जनरल अगर थ्रू रूट्स है किसी इक्वेशन के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, तो इसको एक्सपैंड करोगे दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। So basically this A is sum of roots और this C is product of roots, और B हो जाएगा sum of pairs में जब हमने दो रूट्स को लिया तो उनका सम हो गया। ठीक है, सो A हमारा सम आ रहा है इन अवर इक्वेशन f(x) क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, तो है ही नहीं, गायब है, यानी कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो आ रहा है, यानी कि सम ऑफ रूट्स हमारा इस कंडीशन में जीरो है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ रूट्स जीरो आ रहा है। तो अगर हमारे तीनों रूट्स हमारे सारे के सारे ऑल द रूट्स आर बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि या तो एक रूट होगा या फिर तीन रूट्स होंगे, अगर तीनों रूट्स हमारे बिटवीन 0 एंड 1 होते तो उस केस में सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होता है। इन दैट केस सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि किसी और क्वेश्चन में कभी जरूरत पड़े तो वहां पे समझ सकते हो। तो यहां से ये चीज और कंक्लूड कर सकते हैं हम कि सिंस सम ऑफ रूट्स इज जीरो तो डेफिनेटली एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव, एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव। Isn't it so? क्या ही क्लियर है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ओके, क्या ही क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, एस आर इज अ टेंजेंट एट पॉइंट एस टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड टी आर इज इक्वल टू ओ एस। ओ एस हमारा क्या है, ओ एस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ओ एस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, और एस आर इज द टेंजेंट और टी आर इज इक्वल टू ओ एस। सो अगर ओ एस को हम रेडियस को इक्वल टू 1 मान लेते हैं, इक्वेशन क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, या एक्स मान लेते हैं, चलो ठीक है एक्स मान लेते हैं। तो ओ एस इज इक्वल टू एक्स, हमने रेडियस को एक्स मान लिया।
सो इफ ओ एस इज इक्वल टू एक्स, ओ टी भी तो रेडियस है, ओ एस इज इक्वल टू ओ टी इज इक्वल टू टी आर इज इक्वल टू एक्स, ये सब रेडियस है, तो ओ टी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स और टी आर इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। सो इन ट्रायंगल ओ एस आर, फोकस करो, ट्रायंगल ओ एस आर में एक साइड तो एक्स है, एक साइड 2x है, तो 1:2 का रेशियो आ रहा है साइड्स के बीच में, और याद करो दिस एंगल इज 90, भाई टेंजेंट है, ठीक है, तो दिस एंगल इज 90, तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि वन साइड और टू साइड, दो साइड्स के बीच का रेशियो 1:2 है, यानी कि डेफिनेटली दिस इज 30 60 90 वाला ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज x, दिस साइड इज 2x, सो एस आर विल बी √3x, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल 30 60 90 वाले ट्रायंगल में क्या होता है, वन एंगल इज 30, दिस इज 90, दिस इज 60, 30 के सामने वाला साइड का अगर हमारा वन लेंथ है तो 60 के सामने वाला साइड का लेंथ होगा √3, और 90 डिग्रीज के सामने वाला साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज का लेंथ होगा 2, तो रेशियो ऑफ साइड्स इज 1:√3:2, तो बस वही चीज हमने यूज किया है, एक साइड x है, एक है 2x, तो थर्ड साइड विल बी √3x, और थर्ड साइड इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो सारी साइड्स हमारी √3x हो जाएंगी। एंड देन क्वेश्चन आस्किंग रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा √3x का होल स्क्वायर, तो बेसिकली 3x स्क्वायर, यानी कि रेशियो आ गया हमारा इक्वल टू पाई/3, ऑप्शन ए। और डायरेक्टली 1 मान के भी कर सकते थे, x की वजह 1 मान लेते, चीजें और थोड़ी सी आसान दिखती। ओके, क्लियर है, बिकॉज अल्टीमेटली हम रेशियो ही निकाल रहे हैं, और रेशियो में ऐसा जरूरत नहीं है कि लेंथ एग्जैक्टली क्या आ रहा है, क्योंकि बाद में तो रेशियो ही लेने वाले हैं उनका, और कहीं पे भी लेंथ वाला फैक्टर तो आ नहीं रहा है, सारी वैल्यूज में अननोन तो कहीं पे भी है नहीं, सारी की सारी वैल्यूज नोन है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर ऑप्शन में हो तो फिर हमें सारी चीज़ों को वेरिएबल मान के ही सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज ये पॉसिबल हो सकता है कि वेरिएबल अल्टीमेटली रेशियो में रह जाए, ठीक है, बट यहाँ पे तो पता चल रहा है कि वेरिएबल रेशियो में नहीं रह रहा है, तो वेरिएबल हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इज दैट क्लियर, ठीक है, कुछ भी मतलब जीरो नहीं एज्यूम कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, बट जीरो के अलावा कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There is a closed wooden box of length, breadth and height 20, 14 and 10 cm respectively. The thickness of the box is 5 millimeters. अब देखो सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पे मिलीमीटर है, ध्यान रखना। Weight of the empty box is 3.462 kilograms. So what is the weight of 1 centimeter cube of wood? 1 centimeter cube of wood का weight क्या होगा? तो वॉल्यूम निकालते हैं, वुडन बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। तो डायमेंशंस गिवन है, आउटर डायमेंशंस और गिवन है, और साथ में हमें थिकनेस गिवन है। So let us say कि length is 14, so this is 14, breadth is 10, this is 10, and thickness is 0.5 centimeter, 5 mm यानी कि 0.5 centimeter. So this is 0.5 centimeter, this is also 0.5 centimeter, ठीक है, this is 0.5, this is also 0.5. So inside length क्या हो जाएगा, that will be 14 minus 2 times 0.5 यानी कि 13 हो जाएगा। इनसाइड ब्रेथ क्या हो जाएगा, दैट विल बी 9, 10 माइनस 1। सो इनसाइड डायमेंशन हमारी 1 1 से कम हो जाएंगी, तो वॉल्यूम ऑफ द वुडन बॉक्स, दिस विल बी इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, और वहां से हमें वुडन बॉक्स का वॉल्यूम पता चल जाएगा। आउटर वॉल्यूम इज 20 इंटू 14 इंटू 10 माइनस इनर वॉल्यूम, इनर डायमेंशन क्या होगा, 20 माइनस 1 19, 14 माइनस 1 13, 10 माइनस 1 9, 20 इंटू 14 इंटू 10, 14 2 इंटू 2 28, 2800 आउटर वॉल्यूम आ गया, माइनस 19 इंटू 9 इज 171, 171 इंटू 13, 70 इंटू 13 होता है 221, तो 2210 प्लस 13 2223 आ जाएगा, ठीक है, 2223 आ जाएगा। डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितना बचा हमारा, दिस विल बी 577 सेंटीमीटर क्यूब। सो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड विल बी इक्वल टू टोटल वेट विच इज 3.462 किलोग्राम्स या फिर 3462 ग्राम्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम विच इज 577 सेंटीमीटर क्यूब। 7 6 42, 6 टाइम्स आएगा, ठीक है, 3000 और 420 प्लस 42, 3462, तो यह 6 टाइम्स आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस विल बी वेट ऑफ वुड, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Find the unit digit of 1 factorial to the power 1 factorial, 2 factorial to the power 2 factorial, 3 factorial to the power 3 factorial, and so on till 100 factorial to the power 100 factorial. So 1 factorial is equal to 1 obviously, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 6 into 4 24, 5 factorial is 120 and so on. और क्वेश्चन क्या जा रहा है, यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी. तो जैसे ही यूनिट डिजिट हमारा जीरो आना स्टार्ट हो गया 5 फैक्टोरियल के बाद में, सब में क्या है जीरो आएगा यूनिट डिजिट, तो वहां पे फिर कितनी भी पावर हो फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट हमारा जीरो ही रहेगा. अब 120 की पावर चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 हो, यूनिट डिजिट हमें जीरो ही देगा. तो फर्क नहीं पड़ता. फर्क कहां से पड़ेगा, फर्क पड़ेगा हमको इन पहली फर्स्ट 4 वैल्यूज से. ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल 1 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 6 टू द पावर 6 प्लस 24 टू द पावर 24 और प्लस 120 टू पावर 120 एंड सो ऑन. ये बन गया हमारा मामला. ठीक है, यहां से तो जीरो ही मिलेगा, तो इसके बाद की वैल्यूज से हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल गिव अस यूनिट डिजिट इक्वल टू जीरो ओनली. ठीक है, सो विल ओनली बी कंसर्न्ड विद फर्स्ट 4 वैल्यूज. 1 टू द पावर 1 में यूनिट डिजिट आएगा 1, 2 स्क्वायर यूनिट डिजिट विल बी 4, 6 टू द पावर 6, 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 ही देगा. और लास्टली 24 टू द पावर 24 में यूनिट डिजिट किससे मिलेगा हमें, 4 टू द पावर 24 से. और 4 की ऑड पावर होगा, 4 टू द पावर ऑड always gives us unit digit equal to 4 और 4 to the power even always gives us unit digit equal to 6. तो यहाँ भी 6 ही मिलने वाला है और इसके बाद सबसे मिलेगा 0. तो आ गया 6 प्लस 6 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17, यानी कि यूनिट हमें मिल जाएगा 7. आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यूनिट डिजिट विल बी इक्वल टू 7. ओके, क्या है क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. ABCD is a square of area 4 which is divided into 4 non-overlapping triangles as shown in the figure. So sum of the perimeters of the triangle क्या होगा? स्क्वायर है, एरिया 4 है, और एरिया 4 है तो साइड लेंथ क्या आ जाएगा, साइड लेंथ विल बी इक्वल टू 2 बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4, तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स. एंड क्वेश्चन आस्किंग सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ द ट्रायंगल्स. सो ये जो छोटे छोटे हमारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं इन सब का पेरीमीटर क्या होगा. एक का पेरीमीटर निकाल देंगे, सारे इक्वल होंगे, तो बाकी सबका पेरीमीटर ही वहीं से मिल जाएगा. सो focus on one triangle because this is a square. So in a square, diagonals intersect at right angle. Isn't it so? Square और rhombus में diagonals हमेशा right angle पे intersect करते हैं. तो diagonals are intersecting at the right angle. So this is a right angle triangle and diagonals are also equal. So these two will also be equal. AO will also be equal to BO. So this is a isosceles right angle triangle. और isosceles right angle triangle property क्या होता है? Side lengths का ratio आता है 1:1:√2. 1:1:√2. ओके, सो √2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 2 गिवन है, 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स. सो √2 यूनिट्स की वैल्यू अगर 2 गिवन है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी √2, लेकिन दीज साइड्स विल बी इक्वल टू √2 ओनली. तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOB दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स √2. सो दिस इज 2 into 1 plus √2. सो पेरीमीटर ऑफ द 4 triangles, total perimeter will be equal to 4 times of this value. 4 into 2 times of 1 plus √2. So this will be 8 into 1 plus √2. This will be the answer. 8 into 1 plus √2, option B will be the answer. Okay, clear है? 8 into 1 plus √2 हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A watch dealer incurs an expense of rupees 150 for producing every watch. So there is a recurring expense of rupees 150. जब भी एक वॉच प्रोड्यूस करेगा तो हर एक वॉच पे rupees 150 का प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा. He also incurs an additional expenditure of rupees 30,000 which is independent of the number of watches produced. प्रोड्यूस हो या ना हो, there is an additional expenditure of rupees 30,000, यानी that is a fixed cost. If he is able to sell a watch during the season, he sells it for rupees 250. If he fails to do so, he has to sell each watch for rupees 100. तो rupees 250 में सेल हो जाएगा इन द सीजन और rupees 100 में सेल करना पड़ेगा when the watch is not sold during the season. If he produces 1500 watches, what is the number of watches that he must sell during the season in order to break even? Given that he is able to sell all the watches produced, break even implies NPNL, no profit, no loss. ठीक है, यानी कि कॉस्ट विल बी इक्वल टू रेवेन्यू. जितना खर्चा आया उतना ही रेवेन्यू आ गया. ओके,
एंड क्वेश्चन इज सेइंग ही इज एबल टू सेल ऑल द वॉचेस प्रोड्यूस्ड, टोटल वॉचेस प्रोड्यूस है 1500, तो उसने सारी की सारी वॉचेस को सेल किया है, बट इसमें से कुछ वॉचेस सेल हुई होंगी सीजन में, कुछ ऑफ सीजन सेल हुई होंगी। सीजन वाली वॉचेस पे मिला होगा 250 रुपीज, ऑफ सीजन वाली पे मिलेगा 100। ओके, सो लेट अस अज्यूम कि वॉचेस सोल्ड इन द सीजन इज एक्स, इन सीजन दैट इज इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं इसको। ओके, 150 का पर वॉच कॉस्ट आया है, 30,000 तो कंपलसरी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट इज 30,000, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वॉचेस पे डिपेंड करेगा, वॉचेस 1500 है, पर वॉच है 150, तो 150 इंटू 1500, दिस इज अवर टोटल कॉस्ट। तो 30,000 प्लस 150 इंटू 1500, 15 इंटू 15 225, 2,25,000 प्लस 30,000, दिस विल बी 2,55,000 रुपीज इन टोटल, दैट इज द कॉस्ट एंड दिस विल बी इक्वल टू रेवेन्यू। और रेवेन्यू कितना आएगा हमारा, रेवेन्यू मिलेगा फर्स्ट एक्स वालों से, क्योंकि एक्स वाली जो है सेल हुई है वॉचेस जो सीजन में सेल हुई है, दैट आर गेटिंग फेचिंग रुपीज 250 ईच, तो 250x will be revenue for those watches, plus for the remaining watches revenue will be 100, तो 100 into 1500 minus x, because number of watches sold off season is 1500 minus x, so 250x minus 100x, this will be 150x plus 1,50,000, total is 2,55,000, so 150x becomes equal to 105,000। ओके, जीरो से कैंसिल हुआ जीरो, 15 7 are 105, तो x इज इक्वल टू 700। और क्वेश्चन ने पूछा है ही मस्ट सेल ड्यूरिंग द सीजन, यानी कि ड्यूरिंग द सीजन हमने क्या एज्यूम किया, x एज्यूम किया, तो आंसर हमें x का ही देना है, तो 700 विल बी द आंसर। ध्यान लास्ट में ये देना है, क्योंकि हो सकता है तुमने एज्यूम किया अपने एंड पे कि ऑफ सीजन कितना सेल किया है, ऑफ सीजन वाले को x मान लिया, तो ये ध्यान देना लास्ट में कि हमें आंसर क्या देना है, आंसर x का नहीं देना, आंसर उसका देना है जो वैल्यू हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आस्किंग व्हाट इज द नंबर ऑफ वॉचेस दैट ही मस्ट सेल ड्यूरिंग द सीजन, आंसर विल बी 700 ओनली। 700 पे ब्रेक इवन हो जाएगा, इससे ज्यादा सेल करता अगर सीजन में तो प्रॉफिट होता। ठीक है, 700 से, यानी कि अगर क्वेश्चन ये पूछता है इंस्टेड, देखो लैंग्वेज में जरा सा फर्क होता है, क्वेश्चन अगर ये पूछता कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वॉचेस दैट ही मस्ट सेल टू गेन प्रॉफिट, मिनिमम नंबर ऑफ वॉचेस दैट ही मस्ट सेल टू गेन प्रॉफिट, तो आंसर हमारा 700 नहीं होता। मिनिमम नंबर ऑफ वॉचेस दैट ही मस्ट सेल टू गेन प्रॉफिट, तब आंसर क्या होगा, आंसर विल बी दिस विल बी इक्वल टू 701। 700 से बस एक ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज 700 पे हो रहा है ब्रेक इवन, ये तो ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और एक कम हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब इसी चीज को करने का एक और मेथड है, देखो एक और तरह से इसी चीज को सोच सकते हो कि हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें, और हमें पता है कि पर यूनिट रेवेन्यू कितना आना है, क्योंकि ब्रेक इवन करना है तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो पर यूनिट कॉस्ट विल बी इक्वल टू पर यूनिट रेवेन्यू। बट जो पर यूनिट कॉस्ट होगा ये पर यूनिट टोटल कॉस्ट होगा, सारी कॉस्ट इंक्लूड करने के बाद में जो पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है वो हमारा कंसर्न होगा, तो पर यूनिट कॉस्ट विल बी इक्वल टू पर यूनिट रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू एज सच। ठीक है, सो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगा यहां पे, देखो 150 रुपीज इज डेफिनेटली द वेरिएबल वाला कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, एडिशनली 30,000 इज एडिशनल कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट है, और टोटल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 1500 वॉचेस, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 1500, दैट विल बी पर यूनिट कॉस्ट कंपोनेंट ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया हमारा 150 प्लस दिस इज 20, तो दिस इज 170 रुपीज, तो 170 रुपीज इज पर यूनिट कॉस्ट, और यही हमारा पर यूनिट रेवेन्यू भी होगा 170 रुपीज। अब कुछ वॉचेस हमने सेल किए हैं 250 पे, जो सीजन में सेल किए हैं, और जो ऑफ सीजन सेल किया है दोज वी हैव सोल्ड एट 100 रुपीज। एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज यही आएगा 170 रुपीज का। बट ध्यान ही रखना है कि ये वाला मेथड हम तभी अप्लाई कर पाएंगे व्हेन ऑल द वॉचेस आर बीइंग सोल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, बिकॉज अगर एक दो वॉचेस हमने कुछ वॉचेस नहीं सेल किए हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं, अल्टीमेटली वेट एवरेज ले रहे हैं, और ये एज्यूम कर रहे हैं कि टोटल वॉचेस हमने सारी की सारी सेल की हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, क्लियर है। सो क्योंकि पहले वाले केस में दिक्कत नहीं आएगा, वहां पे तो अगर हमारा नंबर ऑफ वॉचेस कम भी सेल हुआ होता, कहता 1400 वॉचेस सेल हुआ है या 1300 सेल हुआ है, तो फिर हम इक्वेशन बना के वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सारी की सारी वॉचेस सेल होगा तभी ऐसे काम करेगा। अब एवरेज हमारा आ रहा है 170 रुपीज एवरेज रेवेन्यू, बस एलिगेशन लगा दो, तो 250 माइनस 170 इज 80,
170 माइनस 100 इज 70, तो रेशियो आ गया हमारा 7:8 का। और टोटल कितना है? टोटल इज 15 यूनिट्स विच इज इक्वल टू 1500, यानी कि 7 यूनिट्स आर द वॉचेस या 700 आर द वॉचेस दैट आर सोल्ड ड्यूरिंग द सीजन, बिकॉज सीजन वाला हमारा 250 था। ओके, और दिस इज ऑफ सीजन। क्या ही क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नवजीवन एक्सप्रेस फ्रॉम अहमदाबाद टू चेन्नई लीव्स अहमदाबाद at 6:30 am and travels at 50 km per hour towards Vadodara, is situated 100 kilometers away. So from Ahmedabad to Vadodara, Navjeevan Express is going. The distance is 100 kilometers and speed is 50. At 7 am 6:30 am पे स्टार्ट किया है यहाँ से, ठीक है, 6:30 am से। जो नेक्स्ट ट्रेन की बात हो रही है दैट इज स्टार्टिंग एट 7 am. हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस लीव्स बड़ौदा टूवर्ड्स अहमदाबाद एट 7 am. सो दिस ट्रेन स्टार्ट्स एट 7 am एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला काम, दोनों ट्रेन का टाइम सेम करो। कंपैरिजन करने से पहले हमेशा टाइम सेम करो, यानी कि 7 am पे कहां पहुंची होगी। लेट अस से दिस इज द लोकेशन वेयर द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अहमदाबाद रीच्ड एट 7 am. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 6:30 से 7 तक हाफ आवर, 1/2 आवर, और 1/2 आवर्स में ट्रैवल किया होगा। 50 की स्पीड है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 75 एंड बोथ आर गोइंग, स्पीड क्या है? 50 एंड 40 टूवर्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन से जा रही है, ठीक है। एट 7:30 am मिस्टर शाह द ट्रैफिक कंट्रोलर एट बड़ौदा रियलाइजेस दैट बोथ द ट्रेन्स आर रनिंग ऑन द सेम ट्रैक। सेम ट्रैक पर रन कर रही है, और अगर सेम ट्रैक पर रन कर रही है तो हाउ मच टाइम डज ही हैव टू अवर्ट अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन द टू ट्रेन्स? हेड ऑन कोलिजन बिटवीन द टू ट्रेन्स, सेम ट्रैक पर रन कर रही है, तो हमें बस ये देखना है कितने टाइम के बाद में उनका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। बोथ आर मूविंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस है 75 का, और स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 50 + 40। टाइम बिफोर एक्सीडेंट कितना है? डिस्टेंस है 75 डिवाइड बाई स्पीड 50 + 40, 75 डिवाइड बाई 90 यानी 5/6 आवर्स। सो 7 am के बाद में 5/6 आवर्स यानी कि दैट विल बी 50 मिनट्स। सो एक्सीडेंट विल अकर एट 7:50 am, ठीक है, मीटिंग टाइम। उससे पहले अगर रोक लिया तो रुक जाएगा। तो 7:30 पे देख रहा है मिस्टर शाह, 7:30 पे ऑब्जर्व किया, 7:50 तक का 20 मिनट्स का टाइम अवेलेबल है। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एज्यूम करना है कि जैसे ही पता चलेगा या जैसे ही वो स्टेप लेगा तुरंत एक्सीडेंट रुक जाएगा, ठीक है। वो प्रिजम्पशन लेना, अदरवाइज टाइम मेंशन होता है कि 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट पहले पता चलना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मैं एडजस्ट कर लेते। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, 20 मिनट्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fruit seller buys a box of 100 apples for ₹500 and spends ₹40 on the transportation. Spends ₹40 on the transportation. Afterwards, he finds that 25 apples are rotten, which he sold for ₹24 per dozen. He sells the remaining at ₹84 per dozen. तो find his profit percentage. Profit percentage क्या होगा? सबसे पहले तो कॉस्ट क्या होगा? ₹500 इज द कॉस्ट और ₹40 एक्स्ट्रा लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, टोटल कॉस्ट आ जाएगा ₹540। ओके, रेवेन्यू क्या आएगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्पल्स, 25 विच आर रॉटन, और बचे हुए कितने? 75, क्योंकि टोटल एप्पल्स थे 100, 25 एप्पल्स एंड 75 एप्पल्स। तो रॉटन वाले एप्पल्स में सेल किया है ₹24 पर डजन। तो अगर एक डजन का कॉस्ट है ₹24, तो एक एप्पल का कॉस्ट कितना होगा? ₹2 होगा, ₹2 होगा। तो यहां से रेवेन्यू मिलेगा हमें ₹50 का, ठीक है, ₹2 ईच, तो ₹2 इन 25 यानी कि रेवेन्यू मिलेगा ₹50 का। सिमिलरली 75 एप्पल्स में सेल किया है एट ₹84 पर डजन, एक डजन का कॉस्ट है 84, तो एक एप्पल का कॉस्ट होगा ₹7, तो ₹7 इंटू 75, सो दैट विल बी 490 प्लस 35, ₹525। सो टोटल रेवेन्यू विल बी ₹575, total cost is ₹540, cost is ₹540, revenue is ₹575, so there is a profit of ₹35,
So profit percentage will be 35 upon 540 into 100. 0 से गया 0, 350 by 54. ओके 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 70 बाय, नहीं 5 से क्यों सिंप्लीफाई होगा ये, 355 54 है, 2 से ही सिंप्लीफाई होगा. सो दिस विल बी 175 डिवाइड बाई 27. और सिंप्लीफाई से ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि 3 का मल्टीपल है नहीं, तो ऑप्शन ए ही आंसर आएगा फॉर श्योर, और कोई ऑप्शन आंसर आ नहीं सकता. 27 6 आर 162, तो 6 and 13 by 27%. This will be the profit percentage. Okay, clear है. Next question, a tank is connected with 15 pipes. Some of them are inlet pipes, rest work as outlet pipes. Some are inlet pipes, rest are outlet pipes. Each of the inlet pipe can fill the tank in 8 hours individually. So an inlet pipe fills a tank in 8 hours. Positive work कर रहा है, inlet pipe fill कर रहा है. और while each of those that empty the tank, outlet pipe can empty it in 6 hours individually. तो outlet pipe क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, empty कर रहा है और 6 hours में empty कर दे रहा है. ठीक है, तो वर्क यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं. 8 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 24, तो मान लिया हमने 24 लीटर्स टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लिया. और अगर टैंक का कैपेसिटी 24 लीटर्स है तो इनलेट पाइप कितना फिल कर रहा है, 3 लीटर्स पर आवर. पॉजिटिव वर्क 3 लीटर्स पर आवर. और आउटर पाइप हमारा कितना एम्प्टी कर रहा है, 4 लीटर्स पर आवर एम्प्टी कर रहा है. ओके, then if all the pipes are kept open, total pipes are 15. Some are inlet pipes, some are outlet pipes. If all the pipes are kept open, when the tank is full, it will take exactly 6 hours for the tank to empty. Exactly 6 hours में empty हो जाएगा. ठीक है, exactly 6 hours में empty हो जाएगा. कुछ तो देखो इनलेट पाइप होंगे, कुछ होंगे हमारे आउटलेट पाइप्स. मान लिया हमने इनलेट पाइप्स हैं हमारे x, so आउटलेट पाइप्स will be 15 minus x. ओके, अब एफिशिएंसी नेट में कितना आ रहा है, 6 hours में empty हो जाएगा. यानी कि कितना एफिशिएंसी नेट में आ रहा है, नेट एफिशिएंसी इज -4 लीटर्स पर आवर. इजंट इट सो? तो इक्वेशन बना लो कि x into 3 एफिशिएंसी ऑफ इनलेट पाइप्स विल बी +3 into x, यानी +3x. एफिशिएंसी ऑफ आउटलेट पाइप्स विल बी -4 into 15 minus x. और नेट एफिशिएंसी इज इक्वल टू -4 ओनली, बिकॉज 6 hours में एम्प्टी कर रहा है. टोटल 24 लीटर है, 24 by 6 4, लेकिन -4 आएगा क्योंकि एम्प्टी कर रहा है. ध्यान देना, नेगेटिव वर्क है, +4 नहीं करोगे. सो 3x + 4x 7x -60 is equal to -4, so 7x is equal to 56 and hence x will be equal to 8. x equal to 8 आ जाएगा. इनलेट पाइप्स की वैल्यू आ गई हमारी 8, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. ओके, ये तो हो गया, इक्वेशन बना के हमने कर लिया. बट समझने वाली बात यहाँ पे है, अल्टीमेटली क्या हुआ, देखो वी हैव सम इनलेट पाइप्स एंड सम आउटलेट पाइप्स, बट इन द एंड अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आ रहा है, नेट इफेक्ट इज दैट द वर्क इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 आउटलेट पाइप का वर्क. अगर सिर्फ और सिर्फ एक आउटलेट पाइप होता तब भी यही होता, इक्विवेलेंट टू 1 आउटलेट पाइप. इजंट इट सो? ये सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 आउटलेट पाइप. इजंट इट सो? बाकी सारे के सारे पाइप्स हमारे इनलेट और आउटलेट मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं. इनलेट पाइप्स का वर्क इज कैंसिलिंग आउट द वर्क ऑफ रेस्ट ऑफ द आउटलेट पाइप्स एक्सेप्ट 1 आउटलेट पाइप. इजंट इट सो? तो दे आर कैंसिलिंग ईच अदर. और कितने कितने को कैंसिल कर पाएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप इज +3 is to -4. यानी कि इफ वी हैव 4 इनलेट पाइप्स एंड 3 आउटलेट पाइप्स, देन दे विल कैंसिल आउट ईच अदर्स वर्क. अगर हमारे पास एक्जैक्टली 4 इनलेट पाइप्स होते, 3 आउटलेट पाइप्स होते, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते थे, ना तो टैंक फिल होता ना ही एम्प्टी होता, कुछ भी नहीं हो पाता. ठीक है, तो और 4 और 3 का कोई भी मल्टीपल ले लोगे तो वहां भी यही सेम सिनेरियो होगा. तो इफ वी हैव 4 और 3 का मल्टीपल, यानी कि 4 इनलेट पाइप्स एंड 3 आउटलेट पाइप्स, तो नेटवर्क विल बी इक्वल टू 0. नॉट नेटवर्क बट नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क इज 0 इन सच ए केस. तो कितना भी ऐड करते जाओ. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट टू 1 आउटलेट पाइप. तो एक आउटलेट पाइप को एक्स्ट्रा रख लो, प्लस एक आउटलेट पाइप के अलावा रेस्ट देयर मस्ट बी 3n आउटलेट पाइप्स एंड 4n इनलेट पाइप्स. ठीक है, 3n आउटलेट पाइप्स एंड 4n इनलेट पाइप्स, और टोटल हमारा आ रहा है 15, यानी कि 7n पाइप्स है हमारे आउटर इनलेट मिला के, और एक और एक्स्ट्रा है, तो 7n इज इक्वल 15 - 1 विच इज 14. सो n इज इक्वल टू 2. तो यहां से भी तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा, यहां से भी वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, या फिर ये सिनेरियो हमारा बहुत सारे केसेस में हो सकता था. कोई भी केस ले लो, n की कुछ भी वैल्यू ले लोगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट यही आएगा. अगर n इज इक्वल टू 3 भी ले लोगे तो तुम्हारे पास 9 आउटलेट पाइप हो, 9 + 1 10 हो जाएगा, बिकॉज 1 तो एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है जो कि इफेक्टिवली वर्क कर रहा है. तो 10 आउटलेट पाइप्स एंड 12 इनलेट पाइप्स में भी हमारा सिनेरियो यही आएगा कि 6 आवर्स में टैंक विल बी गेटिंग एम्प्टी. तो देयर कैन बी इनफाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, एज सच अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है कि देयर आर टोटल 4n इनलेट पाइप्स एंड आउटलेट पाइप्स आर इक्वल टू 3n + 1, so always the network will be equivalent to 1 outlet pipe.
इज दैट क्लियर? क्या ये अप्रोच समझ में आता है? ठीक है, इज दैट क्लियर? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 3 circles of radius 21 cm are placed in such a way that each circle touches the other two. So what is the area of the portion enclosed by the 3 circles? So इक्वल रेडियस है, भले डायग्राम में समझ में ना आए, ठीक है, डायग्राम में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट इनका रेडियस इक्वल है। रेडियस is 21 cm. These are the centers. Okay, so let us draw this diagram. Radius is 21 each. So this is 21, 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 and this is also 21. Okay, and this is ultimately a equilateral triangle क्योंकि सारे sides equal हैं and all sides are equal to 42. So all angles will be 60. All these angles will be 60 each. नहीं, 60, 60 and 60. Question is asking what is the area of the portion enclosed by the 3 circles. So area of this portion question is asking about. Area of this portion क्या होगा? Okay, so what we can do, let us say this is A, this is B, and this is C. So area of the enclosed portion, this will be equal to area of triangle ABC minus area of the three different parts. ठीक है, इन छोटू छोटू वाले जो हमारे सर्कल के पार्ट्स हैं, इनका एरिया हटा दो, ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिल जाएगा एरिया। ठीक है, और इनका एंगल कितना है? 60 डिग्री ईच है। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी माइनस 3 पोर्शंस, सर्कुलर पोर्शंस। ठीक है, क्या आ जाएगा एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? एबीसी इक्वल टू ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू 42 स्क्वायर, तो इंटू 42 माइनस 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर वन पोर्शन, और मल्टीप्लाई 3 कर दोगे बाद में, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर कितना है, रेडियस कितना है 21, तो इंटू 21 और इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 21 इंटू 21, सो दिस विल बी 441√3 माइनस, और पाई हो जाएगा 22/7, दिस इज 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 3, तो 3 से बचा 2, 2 से बचा 11, 7 से बचा 3, तो 11 इंटू 3 इंटू 21, 21 इंटू 3 63 इंटू 11 630 प्लस 63 693, तो दिस विल बी 441√3 माइनस 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B walk from X to Y a distance of 27 km at 5 km per hour and 7 km per hour respectively. B reaches Y, क्योंकि B की स्पीड ज्यादा है तो B पहले पहुंचेगा, पहुंच के वो लौटा and immediately turns back and meets A at point Z. तो what is the distance from X to Z? So distance between X and Y at 27 is 27 kilometers. So B reaches Y first and comes back and then he meets A at point Z. This is B, this is A. Since both have started at the same time, और सेम टाइम पे फिर मिल रहा है अल्टीमेटली, तो टोटल टाइम जितना उन्होंने जर्नी किया वो तो सेम ही है दोनों के लिए। और अगर टाइम सेम है, इफ टाइम इज सेम फॉर टू पर्संस, तो अल्टीमेटली क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड। ठीक है, स्पीड का प्रोपोर्शन होगा डिस्टेंस, और स्पीड है 5 and 7, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय A विल बी 5x एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय B विल बी 7x, टोटल डिस्टेंस विल बी 7x, isn't it so? जिसमें से कि दिस पोर्शन इज 5x ओनली। सो बचा हुआ पोर्शन क्या है? जाते हुए भी ट्रैवल किया है, लौटते हुए ट्रैवल किया है, और टोटल डिस्टेंस कितना है? 7x, तो 2x बच गया, तो टोटल डिस्टेंस 2x है, तो दिस विल बी x ईच। क्या ये बात क्लियर है? और जैसे ये क्लियर हो गया तो खत्म हो गया क्वेश्चन, बिकॉज टोटल 5x प्लस x 6x आ गया और 27, 6x इज इक्वल टू 27, so x will be equal to 27/6 which will be equal to 6 4 24, 4.5 किलोमीटर्स। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है? डिस्टेंस फ्रॉम x टू z, और x z का डिस्टेंस आ जाएगा हमारा इक्वल टू 5x, तो x z डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5x which is 5 into 24.5, 5 into 4.5, 22.5 किलोमीटर्स।
ऑप्शन बी विल बी द आंसर. Okay, isn't it so? Clear? Next question. In a smartphone factory, robot A, B, and C manufacture 25%, 35%, and 40% circuit board respectively. Faulty circuit boards manufactured by each of the robots is 5%, 4%, and 2% respectively. So what is the probability that the printed circuit board is defective if one circuit board is picked at random? कोई भी हमने randomly pick किया है तो क्या probability होगा कि that will be defective? देखो एक चीज तो clear है कि फॉल्टी सर्किट बोर्ड्स का जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का ईच ऑफ द रोबोट का परसेंटेज क्या है? 5%, 4% एंड 2%. 5%, 4% एंड 2%. ठीक है. सो डेफिनेटली जो हमारा एवरेज वैल्यू होगा वो 5% से लेकर 2% के बीच में होगा, कहीं पे बीच में कहीं लाई करेगा. तो सारी वैल्यूज हमारी उसके बीच में ही लाई कर रही है, वहीं बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा. ठीक है. रोबोट ए, बी एंड सी लाइट थोड़ा सा कम लग रहा है ना. ठीक है. रोबोट ए, बी एंड सी कुछ पावर का इशू है. एनीवे तो ओके. सो फॉर रोबोट्स ए, बी एंड सी 25%, 35% एंड 40% ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बोर्ड. ओके. तो मान लिया हमने 25, 35 एंड 40 प्रोड्यूस कर रहे हैं. टोटल हो जाएगा 100. एंड आउट ऑफ द 25, क्योंकि रोबोट ए के कितने कितने हमारे फॉल्टी हैं? 5%. फॉर रोबोट बी दिस इज 4%. फॉर रोबोट सी दिस इज 2%. तो फॉर रोबोट ए कितना फॉल्टी होगा? 25 इंटू 5, दिस विल बी 1.25. ठीक है. या फिर 2500 मान लो, जैसे भी समझो. 3500, 4500. So this will be 100,000, 10,000, sorry, not 100,000. 100 into 100, 10,000 will be total number. Okay. Now the total 10,000. A ने 2500 प्रोड्यूस किया जिसमें से कि 5% आर फॉल्टी. 2500 का 5% कितना होगा? 25 into 5, 125. B के लिए 3500 का 4%, 35 into 4, 140. C के लिए 4500 का 2%, 45 into 2, 90. टोटल फॉल्टी विल बी, टोटल है 10,000. फॉल्टी कितने होंगे? 125 प्लस 140 दैट इज 265 प्लस 90, 355. एक सेकंड. 265 प्लस 90, 90 सही आ रहा है ना? 40% था, ये गड़बड़ किए हैं भाई. तो दिस विल बी 345. तो आउट ऑफ 10,000 345 आर फॉल्टी. तो चांसेस ऑफ अ फॉल्टी सर्किट बोर्ड जो हमने रैंडमली पिक किया दैट विल बी, प्रोबेबिलिटी विल बी 345 बाय 10,000 which will be 0.0345. This will be the number 0.0345. Closest value is option A, 0.034. So that will be the answer in this case. Okay, ठीक है. Next question करते हैं. In the given figure, AB is the diameter of the circle and points C and D are on the circumference such that angles CAD and CBA are 30 degree and 70 degree respectively. What is the measure of angle ACD? एंगल ACD का मेजर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे एक प्रिजम्पशन ये हो सकता है कि तुम एज्यूम कर लो कि ये जो हमारा फिगर गिवन है ABCD दैट इज अ ट्रेपेजॉइड, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ट्रेपेजॉइड है. ठीक है. और क्योंकि ट्रेपेजॉइड गिवन नहीं है तो वी कैन नॉट एज्यूम दैट कि AB एंड CD विल बी पैरेलल. जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो. ठीक है. तो क्वेश्चन को बिना एज्यूम किए सॉल्व करना है. क्या चीज क्वेश्चन में गिवन है? फॉर श्योर क्वेश्चन में फॉर श्योर गिवन है दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि एक सर्कल बना है और सर्कल के अंदर अपना क्वाड्रिलेटरल है. तो डेफिनेटली दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी क्या होता है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री. यानी कि एंगल A प्लस एंगल C दिस विल बी 180 डिग्री. एंगल B प्लस एंगल D दिस विल बी 180 डिग्री. ये तो पक्की बात है. ओके. एडिशनली क्या गिवन है कि एंगल CAD मिलाना पड़ेगा इस लाइन को पहले. सो CAD दिस एंगल इज 30 and angle CBA is 70 degree. So this angle is 70. Okay. And since AB is the diameter, very important point, whenever जब भी diameter given है, जब भी सेमी सर्कल गिवन है, तो जब भी सेमी सर्कल, क्योंकि AB के एक साइड में सेमी सर्कल, दोनों साइड में सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल विल ऑलवेज बी अ 90 डिग्री या राइट एंगल. तो जब भी सेमी सर्कल कहीं पे गिवन हो तो हमेशा फाइंड दैट 90 डिग्री एंगल, बिकॉज समहाउ हमें उसको यूज करना पड़ेगा. सो ACB दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. और जैसे ये 90 हो गया, नाउ वी आर श्योर दैट दिस एंगल विल बी 20 इस राइट एंगल में. ठीक है. ये एंगल 20 आ गया. और फिर हमें पता है अल्टीमेटली
दैट सम ऑफ दीज टू एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल सी, दिस सम विल बी 180. ठीक है, सो एंगल ए हमारा 50 है, तो एंगल सी क्या होगा, 130 होगा. भाई एंगल ए इज 50 डिग्रीज, तो एंगल सी विल बी 130 डिग्रीज. और अगर एंगल सी 130 आ रहा है और 98 डिग्री का है, तो यही एंगल था, तो दिस एंगल विल बी 40 डिग्री. 90 प्लस 40 130. और क्वेश्चन में ए सी डी के बारे में पूछा है, ए सी डी विल बी 40 डिग्रीज, ऑप्शन ए. ओके, क्लियर है. अदरवाइज अब हम एंगल एडीसी भी निकाल सकते हैं. ये कितना होगा, दिस इज 30, दिस इज 40, 30 प्लस 40 70, दिस विल बी 110, 110 डिग्री. या फिर ये तो सीधे ही निकल आता, 70 था, 70 का अपोजिट एंगल है, तो 110 डिग्रीज होता. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a sequence of 100 positive integers, the sum of the any 6 consecutive terms is same. If the value of the 11th, 22nd, 33rd, 44th and 55th terms are 11, 20, 22, 33, 44 and 55 respectively, then the following is definitely true about the sum of the 19th and 99th term of the sequence. 19th and 99th term of the sequence का sum क्या होगा. Okay. क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, सम ऑफ एनी 6 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम. अब इस लाइन से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लो. एनी 6 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का सम सेम आ रहा है. लेट अस से हमने लिया 1 2 3 4 5 6, एक रैंडम नंबर ले रहे हैं पहले समझने के लिए. ठीक है, ये 6 का सम हमारा कितना आ रहा है. ठीक है, दिस सम इज 21. ठीक है, अब अगर हमें जैसे ही पहला टर्म तुम रिमूव करोगे, क्योंकि सम ऑफ एनी 6 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, सम ऑफ एनी 6 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम. ठीक है, तो इफ सम ऑफ एनी 6 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, तो दैट इंप्लाइज कि अगर तुमने फर्स्ट टर्म को रिमूव कर दिया, आप 7 टर्म लेने वाले हो. ठीक है, 7 टर्म लेने वाले हो, क्योंकि अभी भी तुम 6 टर्म्स का ही सम लोगे, अभी भी सम सेम रहना, तो कब सेम रहेगा, जबकि तुम्हारा 7 टर्म भी 1 हो. 7 टर्म भी 1 हो, तभी तो लॉजिकल है कि अभी भी टर्म सम तुम्हारा सेम ही आएगा. जितना पहले सम आ रहा था अभी वही सम आने वाला है. इजंट इट सो. अब मान लो तुमने सेकंड टर्म को भी रिमूव कर दिया, अभी भी सम सेम रखना है, तो अब नेक्स्ट टर्म तुम्हारा क्या होगा, फिर से 2 होगा. यानी कि सम सारे के सारे टर्म्स हमारे साइक्लिक होंगे. 1 2 3 4 5 6 आए हैं, अगर पहले 6 टर्म्स, तो अगले 6 टर्म्स भी 1 2 3 4 5 6 ही होने चाहिए. फिर 6 टर्म्स हमारे 1 2 3 4 5 6 ही होने चाहिए, यानी कि टर्म्स हमारे साइक्लिक होंगे. बेसिकली टर्म नंबर 7 विल बी इक्वल टू टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 8 विल बी इक्वल टू टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 9 विल बी इक्वल टू टर्म नंबर 3 एंड सो ऑन. और इन जनरल टर्म नंबर 6n plus 1 will be equal to term number 1. Term number 6n plus 2 will be equal to term number 2. Term number 6n plus 3 will be equal to term number 3. Term number 6n plus 4 will be equal to term number 4. Term number 6n plus 5 will be term number 5. And finally, term number 6n will be equal to term number 6. This will be the pattern. यही सेम पैटर्न हमारा इसमें इस केस में फॉलो करेगा. तो टर्म नंबर 11 इज 11. तो अगर टर्म नंबर 11 हमारा इक्वल टू 11 आ रहा है, इफ टर्म नंबर 11 इज इक्वल टू 11, तो टर्म नंबर 11 क्या है, 11 इज 6 प्लस 5, यानी कि दिस इज इक्वल टू टर्म नंबर 5. टर्म नंबर 22 इज 22, और टर्म नंबर 22 क्या है, दिस इज 18 प्लस 4, तो दिस मस्ट बी टर्म नंबर 4. सिमिलरली टर्म नंबर 33 इज इक्वल टू 33, और दिस इज बेसिकली टर्म नंबर 30 प्लस 3, यानी कि इक्वल टू टर्म नंबर 3. टर्म नंबर 44 इज इक्वल टू 44, और दिस इज टर्म नंबर 42 प्लस 2, 6 का मल्टीपल 42 प्लस 2, यानी कि दिस इज इक्वल टू टर्म नंबर 2. और फाइनली टर्म नंबर 55 इज इक्वल टू 55, सो टर्म नंबर 54 प्लस 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू टर्म नंबर 1. तो फर्स्ट 5 टर्म्स तो हमें पता चल गया. टर्म नंबर 1 है हमारा 55, टर्म नंबर 2 है 44, 3 है 33, 4 है 22, और फिर 11. 6 टर्म नहीं पता है हमको कि 6 टर्म क्या होगा, बट ये 5 टर्म्स तो पता है. ठीक है, तो अगर इससे निकल पाएगा इन्फॉर्मेशन तो निकल पाएगा, अदरवाइज 6 टर्म विल बी सम अदर वैल्यू. ओके, फिर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट द सम ऑफ 19th एंड 99 टर्म ऑफ द सीक्वेंस. तो टर्म नंबर 19 प्लस टर्म नंबर 99, तो टर्म नंबर 19 इज 18 प्लस 1, और 99 इज 96 प्लस 3, 6 का मल्टीपल प्लस 3, तो दिस विल बी इक्वल टू टर्म नंबर 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू टर्म नंबर 3. टर्म नंबर 1 आ रहा है हमारा इक्वल टू 11, सॉरी 11 नहीं आ रहा है, टर्म नंबर 1 आ रहा है 55, और टर्म नंबर 3 आ रहा है इक्वल टू 33. तो सम इज इक्वल टू 88. 88 विल बी द आंसर. सो रेंज कहाँ होगा, 75 से 90 के बीच में, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, बिटवीन 75 एंड 90. ओके,
इस समय सारे टर्म पता चल रहे हैं, बस वो टर्म पता नहीं चल रहा है जो कि 6 का मल्टीपल होंगे। तो टर्म नंबर 16 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और टर्म नंबर 12 और टर्म नंबर 18 एंड सो ऑन। तो 6 का मल्टीपल जो भी टर्म्स होंगे उनके बारे में पता नहीं चल रहा है, बाकी सारे टर्म्स पता लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A salesman enters the quantity sold and the price into the computer. Quantity sold and price into the computer. ठीक है. Both the numbers are 2-digit numbers, but by mistake both the numbers were entered with their digits interchanged. So अगर let us say quantity sold हमारा AB था और प्राइस था CD, ठीक है, तो हुआ क्या, एक्चुअल वैल्यू अगर AB जो CD था तो उसकी जगह इंटरचेंज हो गया, यानी कि वैल्यू जो फिलअप हो गया वो हो गया BA एंड DC. एंड क्वेश्चन सेइंग टोटल सेल्स वैल्यू स्टिल रिमेन्स द सेम, यानी कि ए बी इंटू सी डी, ये टोटल सेल्स वैल्यू, दिस इज इक्वल टू बी ए इंटू डी सी, ये भी सेम रह रहा है, विच इज इक्वल टू ₹1148. दिस इज इक्वल टू ₹1148. बट इन्वेंट्री रिड्यूस्ड बाई 54. इन्वेंट्री रिड्यूस्ड बाई 54. लेट अस से अगर पहले 15 था तुम्हारा टोटल क्वांटिटी दैट वाज सोल्ड, और तुमने 15 की बजाय फिल कर दिया 51, तो इन्वेंट्री तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज सोल सेल तो हुआ है 15 तुम्हारा, बट तुमने 51 रिकॉर्ड कर दिया तो रिकॉर्ड में रिड्यूस हो जाएगा। भाई 15 सेल हुआ है, तुमने 51 मार्क किया, यानी कि 36 एक्स्ट्रा तुमने रिड्यूस कर दिया। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या बात समझ पा रहे हो? क्योंकि तुमने इंक्रीज द वैल्यू, सेल तुम्हारा आइटम कम हुआ है, तुमने ज्यादा रिकॉर्ड में डाल दिया है, तो डेफिनेटली तुम्हारा जो इन्वेंट्री है वो कम हो जाएगा। इन्वेंट्री यानी कि जो बच गया वो तुम्हारे रिकॉर्ड में कम हो जाएगा। तो वही सेम चीज कह रहा है कि इन्वेंट्री रिड्यूस बाई 54. ओके, सो व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस? अब डेफिनेटली इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1148 को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने में ही पता चलेगा क्या वैल्यू आ सकता है। तो 148, दिस इज डिविजिबल बाई 4, 4 से डिविजिबल है 4 इंटू 4 के बाद क्या बचेगा, 250 प्लस 250 प्लस 25, 275 प्लस 12, 287, 4 इंटू 287, और 287 में चीख के कह रहा है ये 7 का मल्टीपल है, तो दिस इज 4 इंटू 7 इंटू 41, और दोनों ही नंबर्स हमारे 2 डिजिट नंबर्स हैं, क्वांटिटी एज वेल एज प्राइस। सो या तो केस बनेगा 4 इंटू 7 क्या होगा 21, तो 21 इंटू 28 इंटू 41, और या फिर ये होगा 14 इंटू 82, यही दो केसेस पॉसिबल है, 28 इंटू 41 या फिर 14 इंटू 82। और इन्वेंट्री रिड्यूस हुआ है 54 से, तो डिफरेंस 54 का कहाँ पे आ रहा है, 28 और 82 में 54 का डिफरेंस है, यानी कि ये हमारा इन्वेंट्री वाला मामला है, क्वांटिटी वाला मामला है। तो क्वांटिटी एंड प्राइस, तो क्वांटिटी इज 28 एंड प्राइस इज 41, और सेकंड केस में हो जा रहा है क्वांटिटी 82 एंड प्राइस इज 14। और क्योंकि इन्वेंट्री रिड्यूस हुआ है हमारा इस चेंज की वजह से, तो एक्चुअल वैल्यू 28 और 82 में से कौन सा होगा, एक्चुअल वैल्यू विल बी द लेसर वैल्यू 28, दिस विल बी एक्चुअल। और हो गया है हमसे रिकॉर्ड में गलती, जो मिस्टेक से हुआ है वो हुआ है 82 एंटर किया है सेल्समैन ने, 28 इज द एक्चुअल कंडीशन। क्वेश्चन है कि पूछा एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल अगर 28 है तो एक्चुअल प्राइस विल बी 41, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ₹41 विल बी एक्चुअल प्राइस। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Fresh grapes contain 90% water while dry grapes contain 20% water. What's the weight of the dry grapes obtained from 20 kg fresh grapes? अब फ्रेश ग्रेप्स और ड्राई ग्रेप्स में वाटर तो कंटेंट कम हो रहा है, बट जो चीज़ बदल रही है उसको मत देखो, देखोगे इसको जो नहीं बदल रहा, ठीक है। क्या नहीं बदल रहा, क्या कांस्टेंट रहेगा दोनों केसेस में, इन बोथ केसेस पल्प विल बी कांस्टेंट। वाटर तो देखो कम होगा फ्रेश ग्रेप से ड्राई में, ठीक है, बट पल्प इज कांस्टेंट। तो फ्रेश ग्रेप में 90% अगर वाटर है तो 10% इज पल्प, और ड्राई ग्रेप्स में इफ 20% इज वाटर सो 80% इज पल्प, और पल्प विल बी इक्वल, क्वांटिटी इक्वल होगा, परसेंटेज इक्वल नहीं होगा, क्वांटिटी इक्वल होगा। तो फ्रेश ग्रेप्स कितना है 20 kg, तो 20 kg में 10% पल्प है, तो 10% ऑफ 20 kg विच इज इक्वल टू पल्प, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 80% ऑफ डब्ल्यू वेट मान लेते हैं, डब्ल्यू kg ड्राई ग्रेप्स के लिए, ठीक है। सो 20 kg का 10% विल बी 20/10, 1/10, और दैट इज इक्वल टू 80% यानी 4/5 इंटू डब्ल्यू, तो W इज इक्वल टू 5/2, तो W इज इक्वल टू 2.5 kilograms. Weight of dry grapes will be 2.5 kg, option B. Okay. Clear?
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ माइल रेस अक्षय कैन बी गिवन अ स्टार्ट ऑफ 128 मीटर्स बाय भैरव. सो 1 माइल की रेस है और 1 माइल इज इक्वल टू 1600 मीटर्स. सो अक्षय कैन बी गिवन अ स्टार्ट ऑफ 128 मीटर्स बाय भैरव. 128 का मीटर्स का स्टार्ट देने का मतलब ये हुआ कि इवन इफ अक्षय इज गिवन अ स्टार्ट ऑफ 128 मीटर्स, तब भी भैरव एंड अक्षय विल अल्टीमेटली फिनिश द रेस इन अ डेड हीट, यानी कि इक्वली साथ में एक साथ पहुंचेंगे एंड पे. ठीक है. सो अक्षय एंड भैरव, so when Bhairav completes 1600 meters, in the same time अक्षय कितना कंप्लीट करेगा? 1600 minus 128, क्योंकि पहले उसको स्टार्ट दे दिया इतना. तो 1600 minus 128 will be 1472 meters. रेशियो क्या आएगा? रेशियो क्या आएगा? 16 से डिवाइड कर लो. सो दिस वैल्यू विल बी, दिस इज 100. ठीक है. और ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 92 या 23:25. तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 23:25 बिटवीन अक्षय एंड भैरव. सिमिलरली भैरव कैन गिव चिन्मय स्टार्ट ऑफ 4 मीटर्स इन 100 मीटर डैश. तो बिटवीन भैरव एंड चिन्मय, भैरव चिन्मय को 4 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी कि एट द सेम टाइम व्हेन भैरव इज रनिंग 100 मीटर्स, चिन्मय कैन रन 96 मीटर्स. तो रेशियो आ गया हमारा 25:24 का. एंड क्वेश्चन आस्किंग इफ देयर इज अ रेस बिटवीन अक्षय एंड चिन्मय, और रेस है हमारी 1.5 माइल्स की, देन व्हाट विल बी फाइनल लीड गिवन बाय द विनर टू द लूजर. तो बिटवीन अक्षय एंड चिन्मय स्पीड का रेशियो क्या आएगा? अक्षय और भैरव का 23:25, भैरव और चिन्मय का 25:24. तो दोनों केसेस में भैरव के लिए तो वैल्यू इक्वल है, तो अक्षय और चिन्मय के लिए रेशियो आ जाएगा स्पीड का 23:24. और 1.5 माइल्स का रेस है, तो 1.5 माइल्स यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 1600, 2400 मीटर्स. और स्पीड ज्यादा है चिन्मय की, तो चिन्मय विल बी कंप्लीटेड रेस 2400 मीटर्स का. एट द सेम टाइम अब अक्षय कितना रन किया होगा? 23 इंटू 100, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 100, तो 2300 मीटर्स रन किया होगा. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम दैट ऑफ 100 मीटर्स. एक सेकेंड, रेस ऑफ 1.5 माइल्स है. ठीक है. डिफरेंस राउंड के बीच में 100 मीटर्स का. सो अक्षय आज इज 100 मीटर शॉर्ट. कौन जीतेगा? जीतेगा अल्टीमेटली चिन्मय. और कितने से जीतेगा? 100 मीटर्स बाई 1600 मीटर्स, यानी कि 100 बाई 1600 विच इज 1/16 माइल्स से जीतेगा चिन्मय. ऑप्शन डी विल बी द आंसर, 1/16 माइल्स. इज दिस क्लियर? ओके. ठीक है. So answer will be Chinmay will be winning the race with the lead of 1/16 miles. That would be the answer. Clear? ठीक है. So that is all in this session. I believe जो मैंने डिस्कस किया सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. If there is any doubt in any question whatsoever, then make sure to comment about that doubt. And if you like the session, then make sure to hit the like button as well. And if you've not already subscribed to the channel, then subscribe to the channel as well. ठीक है. टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो. That is Mathological. बाय द सेम नेम. व्हाट्सएप पे चैनल है मैथोलॉजिकल, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो. इफ यू एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग प्रिपरेशन, इफ कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑल्सो आस्क दैट डाउट ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. दैट्स ऑल.